Hello students, in this video we'll do the basics of quadratic equation. What is quadratic equation? Quadratic equation होती है जिसमें highest degree of the equation is 2. हम ये equation मैंने लिखी है यहाँ पर equation में highest degree check करो इसकी, इस टर्म की डिग्री 2 आ रही है, इस टर्म की डिग्री 1 आ रही है और इस टर्म की डिग्री 0 आ रही है. तो हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगा तो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन बिकॉज ऑफ साइन ऑफ इक्वालिटी. पॉलिनोमियल्स में भी तुमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है बट देयर वी डोंट हैव द साइन ऑफ इक्वालिटी. साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं आता. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसमें डिग्री जो होती है दैट शुड बी 2, डिग्री 2 होनी चाहिए, देन इट विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 2. एक्स स्क्वायर के आगे जो टर्म्स आ रही हैं दैट इज ए, एक्स के आगे बी आ रहा और एक कांस्टेंट टर्म सी आ रही है. ए बी सी जो है दे आर रियल नंबर्स. ए बी सी आर कॉल्ड रियल नंबर्स एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. If a becomes equal to 0, अगर a 0 हो जाता है then this degree 2 will not be there. It will remain bx plus c equal to 0 and degree will become 1. Then it will become linear expression. bx plus c बच जाएगा which will be a linear expression. तो ये quadratic नहीं रहेगा. तो most important condition a b c real numbers हो सकते हैं but a should not be equal to 0. I have written some examples here. 2x square minus 5x plus 6 equal to 0. If I have to select a b c from here, so a will be 2, that is coefficient of x square, and b will be minus 5, coefficient of x, and c will be 6 here. Here a will be 3, b will be coefficient of x, that is plus 8, and here c is minus 7. In the third one, 4x square minus 7, a is 4. Here no term involving x, x is not there. So coefficient of x will be 0, which is called b, and c will be minus 7. Similarly, you may get the term like this also. 4x square plus 8x is equal to 0. In this case, a will be 4. B will be 8 and constant term is absent, so we'll consider C as 0. Now solution of quadratic equation. What is the meaning of solution? Solution, or they are called roots also, roots of quadratic equation. It means the value of x which makes left hand side equal to right hand side. ऐसी value x की जो left hand side और right hand side को equal बना दे. In case of polynomial we have got zeros. Zeros जो होता है वो पूरे expression को zero बना देता था. But in this case we have to find the values of x which will make left hand side equal to right hand side. So roots are the values of x. We have got two methods to get the value of x. First one is factorization and second one is quadratic formula. Factorization you have done in polynomial also. You have made the factors of quadratic expression. 9th standard में भी तुम factors बनाते हो. तो यहाँ पर भी हमारे पास दो methods हैं इसको solve करने के. एक factorization है और दूसरा quadratic formula. तो factorization में हम क्या करते हैं? We make the factors of the middle. We split the middle term. इसको हम कैसे निकालते हैं? 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, हाईएस्ट कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. वी गॉट 6 के फैक्टर्स बनाओ, 2 and 3 यू विल गेट 3 एंड देन यू हैव टू कंबाइन दीज फैक्टर्स इन 2 ग्रुप्स. इनको 2 ग्रुप्स में से कंबाइन करना है कि यू शुड गेट -5 एट द सेंटर. सो आई विल राइट -2 -3 विच विल गिव मी -5. सो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6. सो यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम 2 टर्म्स. इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, टेक x कॉमन, यू विल गेट x माइनस 2. इन दोनों से -3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज आल्सो देयर. अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तुम्हारे पास. x माइनस 2 मीन्स फैक्टर्स आर करेक्ट. इन दोनों को दोबारा कॉमन ले लो, x माइनस 2 को. अब ब्रैकेट में तुम्हारे पास जो बच गया उसको लिखो, x इज लेफ्ट -3 इज लेफ्ट, कीप इट इक्वल टू 0.
अब हमारे पास जो ये दो फैक्टर्स बन गए हैं, इनको सेपरेटली हमने 0 के इक्वल रखना है टू गेट द वैल्यू ऑफ x. सो x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो एंड x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखो. सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास ये दो आंसर्स आए हैं, दो रूट्स आए हैं या दो सोल्यूशंस आए हैं ऑफ द इक्वेशन. x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसकी दो वैल्यूज़ विल गेट. सो दिस इज़ द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. सेकेंड मेथड जो है दैट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम कैसे करते हैं, वी हैव टू सेलेक्ट ए बी सी फर्स्ट. ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -5 आ गई यहाँ पर, और सी हमारे पास 6 आ गया. Then we calculate D, or you can directly apply one formula also, or you can calculate D, which is known as discriminant. It is b square minus 4ac. We calculate D, b square minus 4ac. B is -5 square minus 4, a is 1 and c is 6. So you will get 25 minus 24, which will give you 1. तो ये हमने d कैलकुलेट किया पहले. नाउ वील अप्लाई फार्मूला टू गेट x. दैट फार्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a. दिस इज द फार्मूला which you have to learn, quadratic formula, or it can be written as -b plus minus root. In place of d you can directly write b square minus 4ac upon 2a, which we have already calculated. d हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट हेयर आल्सो. तो इस फॉर्मूला मैंने d कैलकुलेट कर लिया. आई विल राइट द वैल्यू b की जगह -5 रखा मैंने, माइनस साइन इज ऑलरेडी देयर. तो प्लस d की वैल्यू 1 आई है और 2 इंटू 1. सो यू विल गेट 5 रूट 1 जो होता है दैट विल गिव यू 1. तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा. ये प्लस माइनस दो आंसर्स के लिए है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील कर रहे हैं. 2 वैल्यूज़ ऑफ x विल बी देयर. सो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 1/2. एक आंसर ये आ जाएगा 6/2, दैट इज़ 3. One value we have got 3. Same here. And other we'll get with minus sign. y 5 minus 1 upon 2 will give you 4 upon 2. तो ये 2 आ जाएगा. तो ये 2 और 3 हमारे पास आंसर आ गए. फैक्टराइजेशन से आए थे और ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से आए हैं. तो इसमें पहले हमने d कैलकुलेट किया एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स हमें कैसे पता लगती है? नेचर ऑफ रूट्स जो है वो हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है, d से. d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आता है b स्क्वायर माइनस 4ac. ये डिस्क्रिमिनेंट है. हमारे आंसर्स कैसे आएंगे? जैसे हमने अभी आंसर्स निकाले थे, द आंसर्स फॉर 2 एंड 3. अगर हमने अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में चेक किया था तो हमारे आंसर्स आ रहे थे 2 एंड 3, और उस केस में d क्या आ रहा था हमारा? 1 आ रहा था. तो d अगर 1 आ रहा है और आंसर 2 और 3 आ रहे हैं तो हमारे आंसर्स डिफर कर रहे हैं, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. दैट वी कैन नो फ्रॉम d. डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता लग जाएगा कि हमारे आंसर्स की नेचर कैसे होगी. अगर हमारा आंसर d जो है दैट इज़ ग्रेटर, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तब हमारे आंसर जो आएंगे वो डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट आंसर्स आएंगे. अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, d 0 हो जाता है, तो हमारे आंसर्स दोनों सेम आएंगे. और d अगर लेस देन 0 होता है तो आंसर्स जो होगा दे विल नॉट बी रियल. यू नीड नॉट टू कैलकुलेट द आंसर्स. तो दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच यू कैन टेल द नेचर ऑफ द रूट्स. d ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल होगा तो रियल एंड इक्वल, और d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो नॉट रियल. आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज 3 विद एग्जांपल्स. देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x plus 10 I have taken. Calculate d. d you will get b square minus 4ac. b square minus 4ac. b is minus 7 square minus 4. a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 10 है. You will get 49 minus 40. तो the answer will d will be 9 here. d 0 से ग्रेटर आ गया, 9 is पॉजिटिव. तो इसके जो दो वैल्यूज़ x की निकलेंगी, दो वैल्यूज़ x की निकलेंगी, वो दोनों जो होंगी वो डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट आंसर्स होंगे, दे विल नॉट बी सेम.
एक्स स्क्र अगर को मैं मिडल टर्म स्प्लिट करके आंसर निकालूँ -5x 2x + 10 = 0 और x - 5 - 2 x - 5 = 0। सो x - 5 दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लो, x - 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही थी, तो हमारे जो दोनों आंसर्स आए हैं वो डिफरेंट आए हैं। सो दिस इज रियल एंड डिस्टिंक्ट when distinct means different when d is greater than 0। सेकेंड केस में अगर d इक्वल टू 0 है, I write one example x² - 4x + 4 = 0। अगर इसमें मैं d कैलकुलेट करता हूँ तो d आई विल गेट 0, b² - 4ac। वैल्यूज पुट करो, b क्या होता है x के आगे वाली टर्म -4² इंटू -4 इंटू a बिफोर x² दैट इज़ 1 है, और c की वैल्यू भी 4 आ रही है यहाँ पर। तो इट विल बी 16 - 16 0 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू आ जाएगी -b ± √d/2a। और यू कैन मेक द फैक्टर, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें वैल्यूज पुट कर दो, और अगर फैक्टर्स बनाने हैं तो आई एम मेकिंग विद द फैक्टर्स x² - 2x - 2x + 4। फैक्टर्स बनाए, इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके x कॉमन लिया, x - 2 कॉमन लिया, x - 2 = 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, तो x - 2 और x - 2 = 0। x की वैल्यू यहाँ से x2 आ जाएगा और यहाँ से भी x2 आ जाएगा हमारे पास। तो वी हैव गॉट सेम आंसर्स। तो वेन एवर वी गेट d = 0, द आंसर्स विल बी द वैल्यूज ऑफ x और रूट्स will be same, and when d greater than 0 the roots will be different, and when d is negative so roots will not be real, you need not to calculate. Let us consider this example, x² + x - 7 = 0. Here a is equal to 1, x² का coefficient, b is also equal to 1 and c is equal to 7. So you calculate d, b² - 4ac, that is 1² - 4, a की वैल्यू पुट करो 1, c की वैल्यू पुट करो 7, so it will be 1 - 28 will give you -27, और d हमारा नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, so roots will not be real. For calculating any unknown quantity, you must be given some condition. For example, you may be given real roots, find k so that the equation has real roots, then you will keep d greater than equal to 0. And it can be asked find k so that the expression becomes perfect square. In that case, you will keep d equal to 0. Find k so that the roots of the equations are equal, you will keep d equal to 0. Suppose that one example I am taking, find k so that the equation kx² - 4x - 3 is equal to 0 has real roots. So you first calculate d, apply this condition of real roots. First you calculate d, d is b² - 4ac. So a, what is a here, x² का कोफिशिएंट k, b -4 आ गया और c हमारे पास -3 आ गया। तो d की वैल्यू आ जाएगी -4² -4, a k आ गया, और c की वैल्यू विल पुट -3, सो इट विल बी 16 + 12k। ये हमारा भी d कैलकुलेट हुआ है। एंड फॉर रियल रूट्स, ये कंडीशन गिवन है रियल रूट्स की, तो d विल कीप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और 16 + 12k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ से 12k आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू -16, एंड k विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू -16/12। 3 से तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, सो विल गेट
4/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर देयर फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस।